hi Shreya, thank you so much for coming to Life as a Dev in a very special episode. So let's first start with your introduction and then we'll move ahead for the further questions and discussions. Okay, so hi, I'm Shreya, and I'm a texturing artist. I do work on 3D models. I help with look and feel of a 3D model. Mhm. I uh, I work on models. मैं काइंड ऑफ जान दे देती हूँ मॉडल को, Okay, मतलब great. कि कैसा दिखेगा, लुक एंड फील क्या हाँ, होगा मॉडल का। हम्म, अगर कोई वेलवेट का टेक्सचर है तो वो वेलवेट का टेक्सचर कैसे है, क्योंकि उसमें कुछ ग्रेनी ग्रेनी पार्ट्स हैं कुछ। right. अ, जैसे कोई चुनरी है तो हम देखते हम्म, हैं, जैसे जॉर्जेट की चुनरी है, वो right. ट्रांसपेरेंसी कैसे आ रही है उसमें। जब हाँ, हम 3D मॉडल बनाते हैं, जब मॉडलिंग होती है उसकी, तो वो एक प्लेन सरफेस होता है, प्लेन okay, ग्रे सिंपल सा सरफेस। ठीक उस है. उसको मुझे जॉर्जेट का कैसे दिखाना है। लेट्स जस्ट Okay. सी अ एग्जांपल, मैं स्क्रीन शेयर हम्म, कर। सो दिस इज द 3D मॉडल। आफ्टर हम्म, मॉडलिंग दिस, it is the it is the model which we get as a texturing artist. So okay. from this we have to make it like this. Oh, that's great. That's great. So Yeah. all these So layering you and the can chundri, see huh? this, the georgette thing I was talking about, Okay. the ट्रांसपेरेंसी इन द चुनरी। पहले हम्म, ये ऐसा दिख रहा था, बट ऐसा दिख अभी रहा ये है. ऐसा दिखता है। सो हाँ. इट्स माय ड्यूटी टू लुक इट, टू मेक इट लुक लाइक दिस। Okay, perfect, perfect. या, दिस, एंड Okay, इट so ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस रेफरेंस। दिस वाज द अच्छा, रेफरेंस ओके, व्हिच आई गॉट फ्रॉम क्लाइंट कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए, कुर्ती में ऐसा वर्क चाहिए। वर्क सो चाहिए. आई मेड हम्म, इट ऑन अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। हम्म. From this, it looks like the complete look is this. Complete look is this. So which So software do you often use for these works? I use Substance Painter, Adobe का Substance. software है ये, Adobe Okay. Substance Painter, and other softwares which are there. Like I also use ZBrush, हम्म. Adobe Substance Designer, Okay, and okay. Maya तो है ही. And currently हाँ, I'm learning Blender also. Blender also. Let's Yeah. move on to the next question. So, where we are gonna see your work, like in the gaming sector or in the animation sector or in the film. So, आप जो ये टेक्सचरिंग है, जो वर्क वी आर डूइंग, तो ये मतलब किन किन इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट हो सकता है? मतलब आउट ऑफ दीज थ्री, I would say in all of these. ऑल ऑफ दीज. ओके. Gaming also, हम्म. in gaming, when you see like the games like PUBG or anything, राइट. the sword you are using, the gun you are using, यस. the uh, in that you can see a rusted sword, और रेस्टेड सॉर्ड. हाँ. गन में जो टेक्सचर दिख रहा है, हम्म. this is all texturing, right? ओके, And even ओके. on ads, movies. Movies. Yeah. Let's move ahead with the next question. So the next question would be like, when did you first discover that 3D texturing is even a career option? Because many people don't know that this field exists. So when do you discover that? Honestly speaking, while working only, I was Okay, not aware of this field. Coming okay. from a commerce background, I Mm-hmm. didn't know this is the thing I will be doing in next few years. Yes, okay. Yeah. That's great. So what was the starting point? Like, what did you have to learn to start from scratch to reach here where you are right now? Okay. So as I say, I come from a commerce background. Right. Yeah, I did my BBA, and during Mhm. COVID, I Okay. discovered my artistic interest. Artistic मतलब interest. before BBA also, I wanted to go and I wanted to enter NIFT. I wanted to work as an artist, but Okay. my skills were not
appealing enough to convince my parents, my family Okay. that I will be doing this. So This. they were not, they didn't allowed me at that time. Okay. But during COVID, when COVID happened, and Right. we were all exploring our skills and Yes. interest. At that time, I was doing painting, sketching. Mm-hmm. I am a self learned artist, I would say, and Okay. I That's take great. pride in that. Right, 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 right. You should be. Yeah. Okay. So I learned sketching, painting Okay. from So the different one, YouTube channels so the one also. behind, And yeah, the one behind you in that right side of the wall, did you painted it by yourself only, or is there yeah, any? I painted Okay. this. Okay. So that's very This, nice. this, everything. I painted it. Everything you have painted. Okay. Yeah. Yeah, that's great. So alongside of this 3D texturing, you do paintings and Yeah. all that stuff. So I was telling you how I entered this field. Yeah. While doing all this, and at that time I was not graduated. My Okay. exam was my final exams were left, like final semester exams. हाँ. So during that time I discovered कि नहीं, मुझे नहीं करना है मुझे। हम्म. एमबीए तो बिल्कुल नहीं करना, और MBA नहीं बीबीए करना. के बाद जॉब तो नहीं करनी है, ये फील्ड Correct. चाहिए ही नहीं। नहीं हाँ. चाहिए, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है मुझे, कुछ तो हाँ. आर्टिस्टिक करना है। एंड दैट टाइम माय फ्रेंड सजेस्टेड मी कि यू कैन change your field, right? Just Okay. Yeah. we'll visit to any institute and we'll see Mm-hmm. कि क्या है। Then हम Okay. लोग गए, and Hmm. mostly I wanted to learn digital paintings. My Okay. only thing, मतलब I was looking forward to that only, कि I would Okay. learn digital painting and then I will see what happens. Okay. And I should say कि thanks to that friend, Okay. that person said me कि ओके तुमको डिजिटल पेंटिंग सीखना है, पर इसके Hmm. बाद क्या? आई नो यू विल Right. बी गुड एट इट, यू कैन एक्सप्लोर द एनिमेशन थिंग ऑल्सो, राइट? यू विल लव Hmm. इट। मैंने Yes. बोला कि यार देखते हैं। नहीं, हाँ. मुझे कुछ ऐसे भरोसा था नहीं कि कुछ हो जाएगा या करना है मुझे। मैंने कहा, नहीं ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। एंड आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इन पुणे, जीका। Hmm. पुणे में So जीका. Okay. that's how it started. I Because the animation thing is very vast. It Right. doesn't look uh, it's not that simple कि हम हाँ. 3D मूवीज देख लेते हैं ना, जो हाँ. जैसे रपंजल हुआ या कोई भी 3D मूवी हुई या शॉर्ट फिल्म्स Hmm. हुए या फिर जो बच्चों के कार्टून वाले जो वीडियोस होते हैं, राइम्स हाँ. होती हैं, Right. that all comes in under 3D, right? So हाँ. जितना छोटा दिखता है ना, 1 मिनट का वीडियो हाँ. देख दिया, वो 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कितने हाँ. महीने लगे हैं, बहुत दैट महीने नो लगते हैं. वन नोज। Right, right. एंड Okay, Shreya. So, next question would be like, if someone wants to enter in 3D texturing industry today, so what things he or she should be keep in mind, and or what all should be there in their bucket to start on? okay, so being a texturing artist, I would say your observation skills must be on point. Like wherever you see there's some texturing you can observe. Mm-hmm. Like in my top currently, Okay. the lines, the feel, Lines are like the texture. Okay. yeah, कि जैसे ये कॉटन का है, ये लाइंस Hmm. दिख रहे हैं, तो दिस इज द टेक्सचर ऑफ दिस। अगर इस पे Okay. ये टेक्सचरिंग नहीं होती तो प्लेन ग्रे सरफेस दिख रहा होता। Plain, हाँ, ग्रे दिख रहा हाँ। होता है, हाँ, right. हाँ, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर्स ऑफ कोर्स, Okay. So, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स व्हिच वी यूज लाइक 3D के लिए। माया इज mhm. बेसिक द स्टार्ट ऑफ इट, लाइक माया, Okay. ब्लेंडर, और substance painter, Mm-hmm. substance designer, all this. Okay. Any specific institutions for a beginner, if you suggest in specific cities? Like, for an example, for Pune and Indore, you can suggest. Yeah, currently I'm learning.
Blender, and ओके। other softwares from Zika Indore. ओके। And similarly, there are many institutes in India which हम्म। uh, which are giving this opportunity to students to enter this field, 3D field, like Mac, Arena, Zika, and there are many more. Even on a local level, there are many. ओके। Yeah. ओके। So yeah, that's perfect. So Shreya, for an example, if someone is creating a short film, he's creating. So for an instance, कितने लोग लगेंगे? Like 3D texturing artist, animation artist. So क्या टीम का स्ट्रक्चर रहेगा and how these things came up very good, तो अपन को seamless एक मूवी दिखती है, तो उसके जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, can you explain that a Understood. little bit? So, Piyush, there are many artists working on a single film. मतलब अगर हम देखा जाए as a project, if we look in any 1 minute or 2 minute short film also, there are Okay. many artists involved. Firstly, Mhm. there's a modeling artist. Right. Uh, After that, 3D texturing comes in. After Okay. that, rigging. I'll just explain a little of हाँ, yeah. each thing. If you see a character in a 3D film, 3D ad, or anything, Okay. it doesn't come like a magic, right? बहुत हम्म। सारे आर्टिस्ट लगते हैं उसको बनाने के लिए, उसमें जान करेक्ट। डालने के लिए। मैं कहूंगी कि जैसे सपोज मैं एक कैरेक्टर हूँ, हम्म। तो मुझे पहले मेरा ढांचा बनाया जाएगा कि हाउ आई एम करेक्ट। लुकिंग, द फिगर राइट। ऑफ मॉडल, हम्म। कि हाथ कैसे हैं, चेहरा कैसा है, बाल कैसे रहेंगे। दैट कम्स अंडर मॉडलिंग। मॉडलिंग, वो ओके, काम सो होता दैट है इज मॉडलिंग। मॉडलिंग आर्टिस्ट का। हाँ। आफ्टर दैट, कि वो दिखेगा कैसा, उसका हम्म। फील क्या होगा। अगर वो कपड़े पहना है तो उसके कपड़े कैसे हैं, मतलब वेलवेट का कपड़ा पहना हुआ है, कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है। ऑल दिस कम्स अंडर 3D टेक्सचरिंग, जो मैं ओके। करती हूँ। ओके। Okay, I'm a 3D texturing artist, so this is my राइट। job. And हम्म। after my job, it comes, मतलब rigging आती है। Rigging is basically मेरी बोन्स, कि ओके। जो मॉडल में जो मूवमेंट दे रहा है, जैसे अब मूवमेंट मेरा ये होगा, ओके। हाथ है। हाँ, तो हम्म। हड्डी डालना, बेसिकली कहें तो बेसिकली हड्डी किसी डाल। किसी मॉडलिंग मतलब सॉरी किसी मॉडल में हड्डी डालना, उसमें बोन्स डालना, कि मूवमेंट होगा हाँ। कहाँ से, कि ये जो मूवमेंट है तो यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे बोन हाँ। है, ये जो खुल करेक्ट। रहा है यहाँ। यहाँ पे जैसे एक सिंपल उंगली को भी देखा जाए तो यहाँ एक बोन है, ये यहाँ से मुड़ रही हम्म। है, ये यहाँ से मुड़ रही है, ये यहाँ से मुड़ रही है। हम्म। तो दिस करेक्ट। कम्स अंडर रिगिंग। रिगिंग। तो ये रिगिंग आर्टिस्ट का काम होता है। ओके। उसके बाद एनिमेशन। उसने रिगिंग हम्म। आर्टिस्ट ने तो बोन डाल के छोड़ दिया, उसको नहीं ओके। मतलब कि वो मूवमेंट कैसे देगा, ठीक है। मूवमेंट कैसे तो देगा, ओके। हाँ, मूवमेंट क्या होगी, कैसे होगी, वो उसका काम नहीं। उसका काम है सिर्फ बोन्स डाल के छोड़ मूव देना, कि डाल। मूवमेंट यहाँ यहाँ से होना चाहिए। ओके। करेक्ट। उसके बाद आता है एनिमेशन। एनिमेशन। हाँ, तो वो एनिमेटर कहेंगे हम उसको। हाँ। एनिमेटर का काम होता है कि मूवमेंट कैसा हो रहा है, कि माउथ की लिपसिंग कैसे हो रही है, जो डायलॉग बोलने बोले जाने वाले हैं वो माउथ कैसे ओपन होगा। ए ई ओके। आई ओ यू, ए ई आई ओ यू का पूरा वो करके रखता है। तो जैसे 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 इवन मैं भी बोल रही हूँ, तो हर एक शब्द जो निकल रहा है, मुंह का हाँ। लिपसिंग कैसे हो रहा है, हाँ। हाथ कैसे मूव हो रहे हैं, हेड कैसे मूव हो रहा है, बात करते टाइम हम्म। कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, दैट ऑल हाँ। कम्स अंडर एनिमेशन। एनिमेशन, ओके। हाँ। सो एंड हाँ। आफ्टर दैट रेंडरिंग और बैकग्राउंड डिजाइनिंग, एनवायरमेंट डिजाइनिंग। ओके। तो एनवायरमेंट आर्टिस्ट अलग होता है, और अच्छा। कंपोजर अलग होता है, कि उसको कंपोजर का काम है कि सारा ये सब जो हो गया है उसको एक जगह पे दिखाना है। हम्म। बेसिकली वो, इट बेसिकली वो, इज अ सो वास्ट थिंग, मतलब बहुत वास्ट लंबा थिंग। प्रोसेस हाँ। होता है। तो अराउंड, अगर अपन एग्जांपल लें एक चीज का, कि हम्म। कोई 1 मिनट की वीडियो है, तो उसको टाइम कितना हाँ, लगना चाहिए? मतलब ये सब प्रोडक्शंस एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब मिला के आपके हिसाब से अंदाजा कितना टाइम लगना चाहिए? इट डिपेंड्स कि उसमें मूवमेंट्स क्या है। फॉर अगर एग्जांपल पेपा सिंपल। पिग, पेपा पिग अगर आपने देखा हो, जो हाँ हाँ कार्टून है, हाँ या हाँ। कोई
छोटे ऐसे टाइप के कार्टून, उनका एग्जांपल लें तो कोई एक मुझे मिनट का। तो लगता है कि आराम से 1-2 महीना तो लगता होगा, या मिनिमम हाँ, 1 महीना तो लगता ही होगा, मतलब लगता ही मिनिमम होगा। बोल रही हूँ, मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं उसका। हम्म। वॉइस आर्टिस्ट भी लगेगा उसमें, सारा ये सब हम्म। कुछ हो गया प्रोसेस, उसके बाद जो डायलॉग्स डिलीवर होंगे, डब भी करना है। डब भी करना है। हाँ, डबिंग भी हम्म। होती है, डायलॉग्स भी डाले जाते हैं। तो ये सब होते होते आई गेस 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए भी 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। लग ही जाएगा। हाँ, और ओके। क्योंकि बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है, तो आराम हाँ, से। आराम से। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। आपकी फील्ड में कोई हम्म। फ्रीलांसर है और हम्म। a someone who is doing a studio job basically in a हम्म। firm, हम्म। कोई शिमारो है, जो ऐसी मीडिया एजेंसीज हैं, हम्म। उनमें कोई फिक्स्ड टर्म पे या फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट पे कोई है, और एक बंदा जो है वो सिंपल फ्रीलांसर है। सो दोनों में से किसका ज्यादा स्कोप है इन दिस इंडस्ट्री, अर्निंग वाइज एंड करियर पाथ वाइज, तो क्या बेटर रहेगा? मतलब जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं इस फील्ड में? आई वुड से कि आप किस लेवल पे हो अभी, आपके स्किल्स कैसे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हर चीज के ओके। अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि अगर आप हम्म। फ्रीलांसर हो तो आपको जरूरी नहीं है कि इस महीने काम मिला तो अगले महीने मिल जाएगा। मिल जाएगा। हम्म। हाँ, और सेम चीज स्टूडियो वाले के साथ भी है कि उसमें बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं। कुछ कुछ स्टूडियोज अपने आर्टिस्ट को कहीं और काम करना अलाउ नहीं करते हैं, कि आप दिन में हम्म। अगर ओ, जॉब कर रहे हो उसके बाद अपना फ्रीलांसिंग फ्रीलांस आप करना कर लो। चाहो तो हम्म। दैट इज नॉट अलाउड सम हम्म। टाइम्स। तो इट ऑल कम्स विथ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। ओके। ओके, so I guess we are at the end of the session, so thank you so much, Shreya. So if you have anything, a part of feedback to me, so you can put it down to us, otherwise we can close the session. No, it was a great session and I really enjoyed it. It was Okay. my first podcast kind of a thing. Okay. Yeah. So So great, yeah, it was thanks for the session. It was very good, and we'll look forward to connect with you. Okay. sure, sure. So ठीक है, thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Okay. Bye bye. बस।